Hello everyone, my name is Rahul Tiwari and I am the person who is running this initiative Eating UPSC with one of my senior. So let me tell you why Eating UPSC. And the simple thing is that I have seen there are many people who have lot of potential and who can crack this examination. They just need guidance. So I thought that I should help people because when I was preparing or working I have gathered lot of experience. So I thought that it's my duty to share with people, and that's what I'm doing here. So there are people who have asked me that whether I am right person who can guide them, whether is it a right platform. So to just answer you, I'll show you something. So just see that these are my notes and you can see them, and I'll discuss about them. But let me tell you one thing, that I'm not here to market myself. It's just that world needs proof and I'm giving you proof. That's it. Nothing much. Okay. So if you see that Hundi had been asked in UPSC examination, and you can see I have mentioned, I have just listed down some terms, and Hundi was among them, and UPSC have asked question on Hundi, and you can see this. Okay, and thereafter you see I have mentioned about cotton. So cotton is basically used as a raw material for textile, in textile industry, and it is being grown in dry region of Deccan Plateau. Okay, and black soil is needed for this. It is a kharif crop. So all these things I have mentioned, and I have also mentioned that it requires high temperature, light rainfall, or irrigation. And I have mentioned 210 frost days and bright sunshine. Okay, you see UPSC question, 210 frost days, 50 to 100 centimeter. So those who have read geography, they can easily understand that 50 to 100 centimeter is light rainfall. Okay, and they have mentioned about this thing called soil. Okay, so I have mentioned about black soil, and if you know the property of black soil, you can easily answer this thing. So let me show you some other things also, and you see that I have mentioned a topic, civil services in India. It might not be clearly visible for you, but if you want I can send you pictures. Okay, and so UPSC question is asking what was the purpose to establish Fort William College in Calcutta, and the answer was he wanted to train British civilians for administrative purposes in India. Okay, and I have also mentioned that Lord Wellesley established Fort William College in Calcutta just to train civil servant in India. So you can see, and apart from that, I have mentioned in my notes vitro fertilization. So you can see that I have mentioned that it's a type of assisted reproductive technology, okay, which involves retrieving eggs from a woman's ovaries and fertilizing them with sperm. You just see what UPSC is asking for nuclear transfer, but it's a basically advanced reproductive assisted reproductive technology. Okay, and you see you could have easily answered these things. So actually you see other things also, and let me tell you one thing, that I have worked for more than 2 years in this field. And when I was working last year in an edtech startup, okay, so I framed prelims test series, entire prelims test series I have framed, and mains test series. And in prelims 61 direct question were there in UPSC prelims, and in mains GS3 around 16 question, GS2 also around 12 question, or GS3 around 13 question. And I'm not saying that keywords only some words are matching. If you write my question, you can write UPSC, UPSC's question also. So that is what I am saying, and if you want I can send you PDFs also for those things. Okay, because this is my work and I can claim anywhere. I have no fear or anything. So this is the thing. And you see this thing also I have mentioned about Australia group. Okay, and it's related to chemical and biological weapon. Second thing is asking
Hague Convention is related to biological and chemical, which is not, which is related to osteoglyph. So I knew this thing, and I knew this thing also. So that's it. I mean, the correct answer was C only. Okay. So you have seen, and I can assure you that if you are trusting this process, you are going to sail through. Okay. Nobody can stop you, provided you study properly and wholeheartedly. Nothing needed during this preparation except your kind attention. Okay. And that is for yourself. Okay. Not for anyone. So, this is the question you should everybody ask who wants to prepare for the civil services examination. They should ask by UPSC civil services examination. Okay. And you have to ask this question yourself and you have to answer, and if you are satisfied with your answer, then let's go ahead. आपको उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ आपको उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद में जो होगा we will see that. And now this is the thing which comes when you decide that I want to prepare for civil services examination. So this is the immediate thing which follow that, how to prepare for the examination. So there are two things कि coaching कर सकते हो आप जाके, और आपके पास दूसरी चॉइस है कि आप सेल्फ स्टडी करो प्रोवाइडेड यू हैव अ राइट गाइडेंस. ओके. अभी मैं कोचिंग के बारे में लोगों को आई विल नेवर एनकरेज देम बिकॉज आई हैव वर्कड इन दिस सेक्टर एंड आई सी द माल प्रैक्टिसेस. So I don't want to talk about it also. And I have seen that there are people who are coming from marginalized family और बहुत गरीब फैमिली से कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके, बहुत फीस भी होता है 1.5 lakh 2 lakh rupees. And in online also they are charging, some are charging 50,000, some are charging 60,000, but I know that they are not doing justice with people. Everybody knows this thing. Okay. तो मतलब let's not talk about it. But second thing I'll say, because I am the person who will always go for self study, कोई कुछ भी हो तो I tell people also कि आपका सबसे बेस्ट ट्यूटर आप ही हो सकते हो और कोई नहीं हो सकता है. So you are your best tutor and teach yourself. That is the thing. और उसके बाद में सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए होता है. So that is the reason I thought that I should help people, and that is why I am here. तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी की जनरल क्वेरीज क्या होती हैं, और इसमें मैं एक दो क्वेरीज आंसर भी करूंगा. तो पीपल आस्क सर आई एम बिगनर, हाउ टू स्टडी, व्हाट आर द सोर्सेज, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, हाउ टू मेक नोट्स, answer writing, how to write good answers, what is the right strategy, how can choose optional, what should be the option. So all these things question people ask. These are very general question. Okay. And you should know about strategy, because it's a very important thing. If you have right strategy you can sail through this examination, and if you don't have, then थोड़ा सा मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं कर सकते हो, बट थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. ठीक है. तो लेट मी डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेटजी. तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, इट्स अ बेसिकली प्लान विच इज यूज्ड टू अचीव समथिंग. सो your objective is to crack the civil services examination. So if you are cracking the examination, it is your achievement, and for this you need a plan, right? और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे अपने प्लान को भी देख लेते हैं, क्या है हम लोगों का प्लान. तो मैं आपसे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे मैंने जो है इसको स्टार्ट किया. सो इन अराउंड 6th और 6th October आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैंने एक प्लान दे दिया था उनको 6th October के दिन ही. आई हैव गिवन देम प्लान फॉर द एंटायर मंथ. ओके. सो वो एक ब्रॉड प्लान था, जैसे कि ये चीजें हैं कि मतलब हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं और किस किस दिन हम लोग क्या कवर करेंगे. बट जो मैं उनको पर डे डेली टारगेट दिया करता था. सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि जैसे मिडिएवल हिस्ट्री. तो इन मिडिएवल हिस्ट्री आई यूज्ड टू गिव 5 to 10 टॉपिक्स एवरी डे. हर दिन मुझे 5 से 10 टॉपिक देने हैं उनको, और उसमें क्या करना है कि से आई एम गिविंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, और मे बी आई एम आस्किंग देम टू रीड अबाउट बाबर और मे बी औरंगजेब. ठीक है. तो इसमें मैं लिंक दिया करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सही दे डू नॉट हैव राइट मटेरियल. तो बहुत सारे लोग जो है वो बुक्स रेफर करते हैं, बट
जो मैं लिंक्स प्रोवाइड करवाता हूँ वो मोर देन सफिशिएंट देन एनी बुक, ठीक है। बुक वाले भी ऐसे ही करते हैं, तो अगर आप लिंक भी फॉलो करोगे तो हो जाएगा। और अगर आप बिगनर भी हो ना तब भी आप लिंक फॉलो कर सकते हो, उसमें कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी वो चीजें पढ़ के। और अगर नहीं आ रही है कोई चीज तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो है, आप किसी का वीडियो देख लो थोड़ा सा, वो आपको चीज समझ में आ जाएगी, तो उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं क्या करता था कि उनको मैंने एथिक्स के टॉपिक दिए, क्योंकि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने हिस्ट्री और एथिक्स इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये मोस्टली स्टैटिक पोर्शन है और इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत चीजें याद रखनी पड़ती हैं। और आप याद तभी रख सकते हो जब आपने इनको पहले से पढ़ रखा हो और आप इनको लगातार रिवाइज कर रहे हो। तो रिवीजन आप तभी कर सकते हो जब आपने पहले से पढ़ा हो, राइट। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी टू गिव देम एथिक्स एंड हिस्ट्री इनिशियली। और इसके बाद में मैं क्या करता था कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गिवन एनी टॉपिक ऑन 7th of October, I used to frame question MCQs, basically MCQs I used to frame on say 9th of October, and I used to give them 5 MCQs at 5 PM। तो उनको मैं कुछ टाइम भी दे देता था कि वो लोग जाके सॉल्व कर सके। इसके बाद मैं अराउंड 8 PM और 9 मैं उनको जो है सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा देता था। तो अब इससे फायदा क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रेड अबाउट यू नो एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत, तो आपके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ यू आर एबल टू आंसर दैट देन वेल एंड गुड, बट इफ यू आर अनेबल तो आप जाके दोबारा से उसको पढ़ सकते हो। तो इससे क्या है, चीजें आपके माइंड में रहेंगी, आप कभी उनको भूलोगे नहीं। तो ये मतलब काइंड ऑफ रिवीजन टाइप का था, ये मेरा इसके पीछे फिलॉसफी थी कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कि आपको प्रैक्टिस भी होगी कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एंड देन you can learn things also। So this was whole purpose। इसके बाद I used to give them a question which is you know descriptive, okay, and they have to write answer and they have to submit it by 8 PM on email ID at easingupsc@gmail.com। अब इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, हम लोग अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसी कैसी चीजें वर्क होती थी और ऐसी ही चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने टॉपिक बेस्ड अप्रोच रखी है, यूपीएससी हमेशा टॉपिक पूछता है, तो आप लोग क्यों, मतलब बहुत सारे लोग दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दे डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर। मुझे थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग है, सो आई कैन हेल्प यू कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। यू विल रीड and easily you can make it। So now let me discuss the plan with you। So in November we are going to cover modern history, culture, world history, society, geography, okay, for mains, security, disaster management and environment। So basically we'll be reading about conservation, nothing much, okay। So this is the broad plan। and इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अलावा हम प्रीलिम्स की आपको अपना ऑप्शनल भी करना है। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट गिव 3 to 4 hours एवरी डे फॉर योर ऑप्शनल, ठीक है। इससे कम में काम नहीं चलेगा, तो आपको कम से कम 3 hours तो देने ही देने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में वील बी कवरिंग मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, नेशनल पार्क, मैप्स। अभी आपको पता है कि मैप से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपके एकदम शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे, एक चीज। दूसरा आपको पता है नेशनल पार्क से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपके 4 से 6 मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कन्वेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी आपके मार्क्स शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे आपको करवा रहा हूँ कि अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जाके एकदम नेशनल पार्क पढ़ लो। हर दिन मैं क्या करता था कि थोड़े थोड़े से दिनों में 4-5 नेशनल पार्क स्टेट वाइज कवर कर रहा हूँ। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के जितने नेशनल पार्क हैं वो कवर कर लिए हैं, और नॉर्थ इंडिया के मोस्टली नेशनल पार्क कवर हो गए हिमाचल प्रदेश को छोड़ के, तो वो हम जल्दी ही कवर करेंगे। तो अब होगा क्या कि आप ये सब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ोगे, और अगर आप 2-2 3-3 से कवर करोगे तो आपको सब याद रहेगा। लेकिन अगर आप एक साथ इकट्ठे 100 पढ़ोगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू कैन डू दिस, बट इट इज गोइंग टू बी टफ, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, ओके। एंड कन्वेंशन में भी यही ऐसा ही है। सो मैंने कुछ कुछ कन्वेंशन न्यूक्लियर सेफ्टी और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उनको अभी तक कवर करवा लिया, और मैंने उनकी नोट्स भी दे दिए हैं, तो आप लोग जाके कर सकते हो। अब कैसे हम लोग ये प्लान वर्कआउट करने वाला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। कि मैंने आपको आई हैव गिवन यू
this plan, you can go to you can check in this channel. Okay, आप जो pinned message है, you can check that. उसके बाद 2 नवंबर को से we will be covering medieval history, culture, mains. Okay, so I'll discuss this thing. Okay, GS3 सिक्योरिटी ऑप्शनल. अब सिक्योरिटी से हर साल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऑन, एंड दे आर ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो दीज आर द थिंग विच यू शुड डू एट प्रायोरिटी, ऑन प्रायोरिटी बेसिस, क्योंकि आपको पता है ये वाले क्वेश्चन आने, इस टाइप के आने, इनको कर लो, आंसर लिख के आओ एंड यू गेट मार्क्स. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो ये सब चीजें इसीलिए मैंने रखी हैं. अब बहुत देयर आर पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली एंड दे हैव बैकलॉग. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि अभी मैं आपको जो आपको डेली टारगेट से इट विल टेक 3 to 4 hours. इसके अलावा आई विल गिव यू 2 to 3 टॉपिक्स. जितने हमने सब पढ़ लिए हैं ना बैकलॉग्स की, धीरे धीरे मैं 2 से 3 टॉपिक्स दूंगा, तो आपको वो भी कवर करने हैं, और वो इट विल टेक अराउंड 1 hour. ठीक है, बट आई कैन अश्योर यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इट मीन्स नवंबर, यू विल बी एबल टू कवर ऑल योर बैकलॉग्स. ठीक है, इसके बाद में हम लोग अब करते क्या है कि जैसे आप ये देखो कि मैं हर दिन क्या करता हूँ कि आपको टॉपिक दूंगा. ठीक है, तो टॉपिक इस टाइप से, जैसे मैंने किसी दिन एक टॉपिक दिया होगा एथिक्स में, इसके बारे में कि आपको एटीट्यूड एटीट्यूड एक टॉपिक है. ठीक है, एथिक्स में. इसके साथ मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराता हूँ. लिंक से क्या फायदा है कि आपको कहीं भी नहीं देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड रीड इट, मेक योर नोट्स एंड यू आर डन. आपका हो गया. ठीक है, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. अगर आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बहुत डिफिकल्ट होगा. बट अगर आप ट्रस्ट करोगे तो वो फिर आपको हमेशा से पता चल जाएगा कि हमने मतलब सही किया है. और ऑब्वियसली हर आदमी को समझ में आ जाता है. एवरीबॉडी इज बाइज दीस डेज. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस about answer writing thing, because lot of people have asked me, sir, I am just beginner, how can I राइट आंसर. तो इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ. इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. एक, आपका सिलेबस कवर होगा. ठीक है, और वो दोनों के लिए होगा, प्री प्लस मेंस के लिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्री के लिए कर रहे हो. आपका यू विल कवर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. ओके, नाउ लेट मी टेल यू हाउ. सो से दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन ऑन 27th of October. मधुबनी आर्ट, मंजूषा आर्ट, Rajasthani School of Painting, Pahari School of Painting. Now there is a school called Guler School, okay, in Pahari School of Painting. अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग किससे रिलेटेड है, और आपको यही 4 ऑप्शन दे दी जाए, तो अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में तो यू कैन इजीली आंसर, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे. राइट. इसके बाद में आपने देखा भी होगा कि प्रीलिम्स में 2000 शायद 18 में एक क्वेश्चन आया था बनी ठनी से रिलेटेड, जो कि किशनगढ़ पेंटिंग, जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है उससे रिलेटेड है, तो वो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर आता है. तो आप जब ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो रही है, मेंस की भी हो रही है. उसके बाद आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, और आपके पास चांस है इम्प्रूव करने का. अब मैं क्या करता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे होते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, कम वर्ड्स में बहुत सारी चीजें कवर कर रखी होती हैं, तो मैं उनको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ. और उसका रीजन ये है कि आप लोग देख सको कि कैसे उन लोगों ने अच्छा किया है, और आप उनसे अपना यू कैन कंपेयर योर आंसर एंड यू कैन इम्प्रूव. सो दैट इज द होल पर्पज, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कवर this thing, and I can tell you by the end of Feb, okay, we are going to cover entire prelims and mains syllabus. I can assure you, I'll give my best and you'll have to give your best, and that is how you are going to make it. Okay, and I'll be very happy if you have any query or any issue related to your preparation, you can ask me. So I have already provided my WhatsApp number, and those who have not joined the channel, they can also watch, they can also search Eating UPSC on Telegram, and they can follow the channel. Okay, and I am telling you, just follow this plan for 15 days and अपने आप से पूछना कि आपका कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, and this is WhatsApp number where you can WhatsApp me. Okay, I'll answer you. ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद दिस. आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये प्रोग्राम वर्क करने वाला है. एंड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी और एनी डाउट,
you can ask me, and there were certain queries related to current affairs, note making, sources, etc. etc. So I'm going to cover those things in another video because it's quite lengthy video. It's already more than 20 minutes. So we will discuss those things in another video, and I wish you good luck. And if you have any query, again I'm telling you, WhatsApp me. Thank you so much. Have a great time ahead.